Good morning, children. Welcome to the English class. Now, children, yesterday we studied chapter number 5. The name of this chapter is There Will Come Soft Rains. Now, the children, before starting the question answer, today we will do the question answer and word meaning. So before starting the question answer, I summarize this poem again. Okay. So now, children, in this poem, the poetess talks about mankind, that mankind would perish on account of war, but the natural cycle continue forever. Okay. So the poem begins with a speaker describing a few सीन्स ऑफ पीस। इसमें जो पोएम जब हमारी स्टार्ट होती है तब उसमें क्या पिक्चराइजेशन किया गया है कि कुछ सीन से स्टार्ट होती है। लेट्स सी, देयर आर बर्ड्स ऑफ सर्कलिंग singing with a shimmering sound, as well as the frog rocking in the pools of water at night. The wind, tree, and creature of the world are in alignment and content with one another. Okay, students. In the second half of the poem, describe how nature and spring would not notice if all the humankind was at war. It would not impact them in the slightly. Additionally, they would not notice if every person on the planet. So now the student you know very well, but the nature continue forever. जब भी हमारे अर्थ के ऊपर कोई भी वॉर होगा, या मैंने आपको बताया था कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है? जब सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। लेकिन नेचर की जो प्रोसेस होती है वो क्या रहती है? कंटिन्यू फॉरएवर चलती रहती है। देखिए, एनिमल्स बर्ड्स पे माइनर इफेक्ट तो पड़ता है, माइट बी इफेक्ट ऑन द बर्ड्स बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ फूड है ना, क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो जाती है, बाहर नहीं निकलेंगे तो फूड कैसे देंगे हम एनिमल्स को। लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं, ओवरऑल इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है मैनकाइंड पे पड़ रहा है। लेकिन हमारी जो नेचर है, नेचुरल जो प्रोसेस है वो क्या रहता है? कंटिन्यू फॉरएवर चलता ही रहता है। सो नाउ आई होप द स्टूडेंट will have to understood this poem. So today we will do the preparation word, word meaning and question answer. So let's start with the preparation word. Okay. So first is here shimmering, SHIMMERING, shimmering. Okay. Next is here whims, WHIMS, whims. Third one is here TREMULOUS, tremulous. Now student, please repeat after me, tremulous. Number fourth is here perish, PERISHED, perish. Number fifth is here whistling, WHISTLING, whistling. Number six is here SCARCELY, which means hardly. इसको pronounce करेंगे scarcely. Okay, pronounce is here scarcely. Okay, now I'm starting a word meaning. First is here shimmering, SHIMMERING, which means shining with a soft light. Second one is here whims, 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 which means urges. मैंने आपको बताया था ना कि urges means क्या होता है? A strong need or desire. Third one is here tremulous, TREMULOUS, tremulous means trembling. Trembling is also हम हिंदी में क्या बोलेंगे? Trembling का मतलब क्या होता है? Vibrate होना या कांपना. Number fourth is here perish. Perish means died, PERISHED, perish means died, yeah, we can say gradually end. Okay student, now I'm starting a question answer of this chapter. Answer these questions. Question number one, what is the speaker's opinion of nature? Speaker की जो opinion का मतलब क्या होती है? राय क्या है nature के बारे में? The speaker's opinion of nature is that it would continue forever, unlike mankind, even after the war has ended. स्पीकर की जो राय है, opinion का मतलब क्या होती है? राय है किसके बारे में? नेचर के बारे में। क्या है कि वह that it here it refer to a nature, it किसके लिए कहा गया? नेचर would कंटिन्यू फॉर एवर, हमारी जो नेचर है वो क्या रहती है? कंटिन्यू चलती रहेगी। अनलाइक मैनकाइंड इवन आफ्टर द वॉर हैज एंडेड, लेकिन इसकी बात कर रहे हैं अब जो मानव जाति है उसकी विपरीत हमेशा ही क्या होती है? जो हमारा जो युद्ध होएगा है ना,
कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी जो हमारी जो मानव जाति के विपरीत हमेशा ही ये क्या रहेगी, जारी रहेगी। इसमें बात किसकी करेगी है, इसमें स्पीकर ने यही बताया गया है कि जो हमारी जो नेचर है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगी, चाहे हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे प्लेनेट के ऊपर कितने ही वॉर हो जाए, कितने ही कुछ भी जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, जो वॉर हो जाए तो भी हमारी जो मैनकाइंड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारी नेचर है, कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, नंबर सेकंड इज हियर, डिस्क्राइब द स्पीकर्स व्यू ऑन मैनकाइंड एंड वॉर। अब आपको क्या डिस्क्राइब करना है, स्पीकर व्यूज। व्यूज मीन्स ऑल्सो हम कह सकते हैं स्पीकर की व्यूज क्या है, विचार क्या है, उसकी राय क्या है ऑन मैनकाइंड एंड वॉर। मैनकाइंड मानव जाति और जो युद्ध था उसके बारे में स्पीकर की राय क्या है, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। The speaker's view on mankind and war are that the latter would cause the former to perish. So firstly you have to understand what is latter. Latter means होता है बाद वाला, okay, and former को हम बोलते हैं, we means of former is पहले। ओके, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, पहले, भूतपूर्व हम जिसको बोलेंगे। एंड पेरिश मींस डाई, मींस ग्रेजुअली एंड। ओके, सो नाउ द स्पीकर व्यू ऑन मैनकाइंड। स्पीकर का जो विचार है, जो राय है मानव जाति और युद्ध के बारे में, वो क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि जो मानव जाति और युद्ध है बाद में नाश होने का वो जो क्या हो रहा है, कारण बन रहा है। बाद का कारण क्या होगा कि वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको जैसे पोएम के अंदर हमने रीड किया था कि जैसे हमारी जो नेचुरल जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन एंड किसका हो रहा है, एंड होता है ह्यूमन काइंड का क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली एंड हो रही है। ओके स्टूडेंट, सो इसमें यही कह रहा है कि हमारे जो भी मानव जाति है और जो युद्ध है बाद में नाश होने का कारण क्या हो रहा है, वो बाद में नाश होने का कारण धीरे धीरे बन रहा है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, व्हाट डज सॉफ्ट ड्रिंक्स मीन। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है, सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स अ टाइम व्हेन द वॉर वुड बी ओवर and everything would get back to being normal and peaceful. So now the student in this poem, the means of soft drinks, the poet is says that the sovereign का मतलब क्या है, when the war would be over, जब हमारी जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, everything would get back to be normal, और जो हमारी जो सारी चीजें हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी एंड पीसफुल, और हम क्या रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो सॉफ्टवेयर का मतलब इसको क्या किया गया है, इसको एज ए पिक्चराइज किया गया है। किससे पिक्चराइज किया गया सॉफ्टवेयर को, यहाँ पर एज ए मेटाफर यूज किया गया। मेटाफर क्या बोलते हैं, रूपक होता है जिससे हम किसी को किसी से रिलेट करते हैं, किसी से सिमिलर करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो हियर द सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जब वार खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग और सब चीजें वापस नॉर्मल और शांत हो जाएगी। ओके, now number fourth is here, what will happen when it rains। क्या होगा जब बारिश होगी। when it rains, जब बारिश होती है, the smell of the ground would appear। आपको पता है कि जब बारिश होती है, when the rain drops are put on the sand, so there are some smell, we feel the smell of the ground। yes, the smell of the ground would appear। जो ground से क्या होती है कि smell, we feel the smell, हम प्रकट होती है, हम उसको smell करते हैं। swallows will circle with their shimmering sound। और जो swallows, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, birds की बात करते हैं। The bird were cycling with their shimmering sound, frog in the pool will sing at night। और जो frog होते हैं पुल के अंदर क्या करते हैं रात को, है ना, रात को क्या करते हैं, एक weird kind of noise होती है वहाँ पे एक पुल के अंदर। आपने yes you must have listened heard of this sound of the frog। okay student, now आपने रात को सुनी होगी फ्रॉग की आपने। वाइल्ड प्लम ट्रीज विल ट्रेम्बल। और जो प्लम ट्रीज जो हमने बात करी थी वो क्या होते हैं, विल ट्रेम्बल मीन्स क्या होते हैं, ट्रेम्बलिंग होते हैं, कांपते हैं, हिलते हैं। एंड रॉबिन्स विल विसल देयर विंग्स। और जो रॉबिन्स होते हैं, हियर रॉबिन्स इज हियर, रॉबिन्स इज अ बर्ड। नाउ रॉबिन्स विल विसल देयर विंग्स। और जो रॉबिन्स भी क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, सीटी, मतलब उनकी जो वॉइस होती है, जो क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। सो क्या हो रहा है कि इसके अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया कि ये बता रहे हैं कि आंसर क्या है हमारा, जब बारिश होती है तब क्या होती है, जब बारिश होती है तो हमारे हमको क्या होता है, वी फील द स्मेल ऑफ द ग्राउंड, आफ्टर दैट we see that the we hear the sound of the birds, and after that the sound of the frogs we listen, and the wild plum trees will tremble and the robins will whistle.
Okay, student, I hope you have understood. Now we move on the question number 4. Answer these questions with reference to the context. Okay, and no one will know of the war. No one will care at last when it is done. Okay, I'm explaining. No one will know of the war. कोई भी इस war के बारे में नहीं जानता. No one will care at last when it is done. No, कोई भी इसके बारे में at last कोई नहीं जानता कि क्या हो रहा है. So your question is, sir, who will not know of the war? कौन नहीं जानता वॉर के बारे में? कौन नहीं जानता? यस, द आंसर इज हियर, द नेचर विल नॉट नो ऑफ द वॉर. नेचर इस वॉर के बारे में नहीं जानती. तो नेचर को कुछ पता ही नहीं. उनकी जो प्रोसेस है वो क्या रहती है? कंटिन्यूस रहती है, चलती रहती है. उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वॉर हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कुछ भी नहीं. लेकिन उनकी जो प्रोसेस है वो चलती रहती है. उनको किसी का मतलब नहीं है, तो वो नहीं जानते कि इस प्लेनेट पे, इस अर्थ पे क्या हो रहा है. Question number second is here. Why will not one care when it is done? Why? वे क्यों नहीं केयर करते? When it is done, जब ये चीज होती है तो उसे केयर क्यों नहीं करते? Yes, no one will care. No one will care when it is done, as it will have no implication of them. Yes, it will have no. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम इधर किसकी बात कर रहे हैं? नेचर की बात कर रहे हैं कि नेचर के ऊपर उनका जो इम्प्लीकेशन मीन्स हम बोल सकते हैं उनका जो उलझाव या उनका जो फसाव है वो उसके ऊपर नहीं होता. वे उसके बारे में नहीं बात करते. नो वन विल केयर. वो उसके बारे में कोई देखभाल विल केयर, कोई भी बात नहीं करते, कोई केयर नहीं करते. व्हेन इट इज डन, जो किसकी बात चल रही है? व्हेन इट इज डन, व्हेन द वॉर happen on the earth, as it will have no implication of them. मतलब यहाँ पर किससे बात करेगी? अब नेचर की बात कर रही है. it will have no implication, उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता, कोई भी उलझाव या कोई भी निहितार्थ. अगर हम ये बात सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि इसमें कोई भी निहितार्थ नहीं होगा. Okay, student. Now we move on the see. What is the speaker talking about? Explain in detail. अब इस जो लाइन्स है उसके अंदर स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है? The speaker is talking about the fact that the war would have no effect on nature, yes, but it would cause the mankind to perish. अब स्पीकर इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? स्पीकर कह रहा है कि जो वॉर है उसका कोई नेचर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट उसका कारण क्या? बट इट वुड cause the mankind to perish. पर इसका कारण क्या है कि जो मैनकाइंड है वो पेरिश मींस डाइड ग्रेजुअली, एंड वो जो मैनकाइंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पेरिश हो रही है, धीरे धीरे एंड हो रही है. ओके, नाउ second contestant is here. And spring herself when she walked at dawn would scarcely know that we were born. So this is a question. Who is the speaker? What is he she talking about? Speaker कौन है और वो किसके बारे में बात कर रही है? Yes, everyone know that the poetess is the speaker. यहाँ पर जो poetess है वो क्या है? इसकी speaker है, and she is talking about the non-existence of the effect of the war on season, particularly spring. Yes, इसमें क्या है? Speaker इसके बारे में बात कर रही है. Speaker है इसके अंदर, poetess है, और वो किसके बारे में बात कर रही है कि नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द वार ऑन सीजन, की सीजन के ऊपर इनका असर, कोई भी पर्टिकुलर वॉर का असर नहीं पड़ता. पर्टिकुलरली स्प्रिंग सीजन की हमने बात करी थी ना कि स्प्रिंग सीजन होता है, उसके ऊपर पर्टिकुलर इफेक्ट, इसका वॉर का इफेक्ट नहीं पड़ता. स्प्रिंग सीजन जैसे आता है वैसे ही आएगा और जैसे हमको जाना है वैसे ही जाएगा. लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है, हम किसकी बात करते हैं? स्प्रिंग, पर्टिकुलर स्प्रिंग की सीजन की बात कर रहे हैं. बात क्या आ जाती है वापस से कि नेचर की, कि वॉर होएगी या कुछ भी डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन नेचर अपनी कंटिन्यूस प्रोसेस में चलती रहेगी. तो पर्टिकुलर हम किसकी बात करते हैं? स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं कि स्प्रिंग सीजन. अब देखिए, आपने एक एग्जांपल देती हूँ. अभी लॉकडाउन था, हमारे मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ना. अब वापिस से भी हमारा समर आ गया, तो समर के बाद विंटर स्टार्ट होने वाला है. लेकिन आपको अभी भी पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन पीरियड चल रहा है. लेकिन अब आपको पता है कि विंटर सीजन आ गया. क्या इन सीजन के ऊपर
ये जो कोरोना का इफेक्ट क्या सीजन के ऊपर पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए जो स्प्रिंग सीजन है जो वो कंटिन्यूस आता रहेगा और चला भी जाएगा, इसके ऊपर किसी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी वैसे अभी हमारी जो नेचर है कंटिन्यूस चलती जा रही है, अभी समर है फिर अब विंटर भी स्टार्ट हो रहा है हमारा, है ना। लेकिन ये जो जो नेचुरल प्रोसेस है ये क्या रहती है, कंटिन्यूस रहती है। इसके ऊपर क्या लॉकडाउन या इसे कोरोना वायरस का इफेक्ट पड़ रहा है या कोई वॉर का इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। स्टूडेंट, नाउ we go on the next question. Why will spring not know that we were born? स्प्रिंग विल नॉट नो, स्प्रिंग नहीं जानता दैट वी वर बोर्न। यहाँ पर वी किसके लिए बात करी है? मैनकाइंड की बात करी है। ओके, बिकॉज वॉर वुडंट हैव एनी इफेक्ट ऑन नेचर, क्योंकि जो वॉर है जो लड़ाई है उसका जो इफेक्ट नेचर पे नहीं पड़ता बट ओनली ऑन मैनकाइंड। लेकिन उसका जो वॉर का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मैनकाइंड के ऊपर पड़ रहा है। सो the answer, the spring not know what we were doing, we were born। स्प्रिंग को नहीं पता, स्प्रिंग सीजन को नहीं पता कि हम डाइड हो रहे हैं, हम पेरिश हो रहे हैं, मैनकाइंड पेरिश हो रही है। उसके ऊपर उसका इफेक्ट कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ओके, नंबर थर्ड इज हियर, व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन द अबव लाइंस? इन लाइंस में वी किसके लिए आया गया है, किसके लिए खड़ा है? वी स्टैंड फॉर मैनकाइंड। यहाँ वी किसके लिए आया गया है? मैनकाइंड के लिए आया गया है। So now the student, that's all about the question answer and word meaning. I hope you have to understood.